Hello, dear students. I hope you all are safe and staying at home. This is Anamika. Today I am going to read second chapter in front of you. The name of the chapter is Magic Blackboard, and the writer of this chapter is Pedro Pablo Sacristan. Students, before reading the chapter, let me tell you that this chapter is very interesting and inspirational. Let us discuss that when you go for a picnic, when you leave the picnic spot, you find empty tins, paper plates and glasses there. जब आप पिकनिक स्पॉट पे जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो ना कि यहाँ वहाँ पे एम्प्टी पैकेट्स हैं या पेपर प्लेट्स वहाँ पे थ्रो किए हुआ होता है. तो ये जो मैजिक ब्लैक बोर्ड चैप्टर है ये इसी थीम पे बेस्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द चैप्टर. आप मेरे साथ रीड करोगे. यू विल रीड आफ्टर मी. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ चैप्टर. लेट्स रीड इट. A boy is walking through a little forest which is full of dry trees. There he finds a big blackboard hanging near an old tree. Next to it is a box of chalk pieces. The boy takes a piece of chalk and starts to draw on the board. First, he draws a tree, then a rabbit, and then a flower. Magically, whenever he finishes drawing a thing, it jumps out of the board. Very soon, the place becomes a green forest full of animals playing happily. Very happy, the boy also draws his parents, brothers, and sisters enjoying a picnic with their sandwiches and chips. He also draws paper plates and empty tins of soft drinks left on the ground. He does this because this is what always happens on their picnics. But when these bits of litter come to life, something awful happens. Around every paper plate and every empty tin, the forest turns grey, and this greyness starts spreading everywhere, to the grass, to the flowers, to the animals. The boy realizes that it is because of the litter that the forest has become grey. So he runs through the forest with the blackboard eraser in his hand to erase it. He is quick and does not leave a single piece of litter. The forest becomes green again. The animals also look happy. The boy and the animals play together for the rest of the day. The boy never sees that blackboard again. But now, every time he goes for a picnic with his family, he remembers what happened there and is the first to pick up any litter. He also sure to remind others that anything they leave lying in the forest is very bad for the forest and the animals. So students, this was the reading of the chapter. Now I am going to explain the chapter very clearly with very interesting way. Remember it students, the name of the chapter is Magic Blackboard. This is our second chapter. Let's start. The boy is walking through a little forest which is full of dry trees. Students, एक boy है. When he was walking through the forest, he saw that the trees were fully dry.
Students, if you look at this picture here, every tree is dry. There is no green tree. जब वो बच्चा फॉरेस्ट में जाता है तो उसे वहाँ पर ड्राई ट्रीज़ दिखते हैं. अभी ये आप जैसे देख रहे हो ना, यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल ड्राई हैं, सूखे हुए हैं. There he finds a big blackboard hanging near an old tree. Next to it is a box of chalk pieces. Students, वहीं पे उसको पास में क्या दिखता है कि एक ब्लैक बोर्ड है जो बहुत ही ओल्ड ट्री के ऊपर लगा हुआ है, लटका हुआ है, हैंग किया हुआ है. नेक्स्ट टू दैट उसी के पास में एक चौक का बॉक्स भी है, लाइक दिस. उसको इसी तरह का एक ब्लैक बोर्ड दिखता है जिसके पास चौक का बॉक्स होता है जिसके अंदर चौक के पीसेस होते हैं. द बॉय टेक्स अ पीस ऑफ चौक एंड स्टार्ट्स टू ड्रॉ ऑन द बोर्ड. फर्स्ट ही ड्रॉज अ ट्री, देन अ रैबिट एंड देन अ फ्लावर. लुक एट दिस पिक्चर. जो वो बॉय है वो क्या करता है, चौक का पीस लेता है और ड्राइंग करना स्टार्ट करता है उस बोर्ड पे. फर्स्टली वो पहले क्या ड्रॉ करता है, एक ट्री, देन अ रैबिट एंड देन अ फ्लावर. सबसे पहले वो एक ट्री को ड्रॉ करता है, देन एक रैबिट को और एक फ्लावर को ड्रॉ करता है. मैजिकली whenever he finishes drawing a thing, it jumps out of the board. मैजिकली क्या होता है, क्योंकि वो मैजिक ब्लैक बोर्ड है तो मैजिक होने की वजह से जो भी वो उस पर ड्रॉ करता है ना, वो ब्लैक बोर्ड से बाहर आ जाती हैं चीज़ें. वेरी सून द प्लेस बिकम्स अ ग्रीन फॉरेस्ट. और बहुत ही जल्दी वो जो जगह होती है वो क्या बन जाती है, ग्रीन फॉरेस्ट, फुल ऑफ एनिमल्स प्लेइंग हैप्पीली. जहाँ पे जो एनिमल्स हैं बहुत ही खुशी से खेल रहे हैं, हैप्पीली खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग. लुक स्टूडेंट्स, हेयर एनिमल्स आर प्लेइंग वेरी हैप्पीली. इन दिस वे जो वहाँ पे जो फॉरेस्ट था वो बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल फॉरेस्ट बन गया. वेरी हैप्पी द बॉय ऑल्सो ड्रॉज हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एन्जॉइंग अ पिकनिक विद देयर सैंडविचेस एंड चिप्स. अब जो बॉय है वो क्या ड्रॉ करता है, वहाँ पर अपने पेरेंट्स को ड्रॉ करता है, अपने ब्रदर्स को और सिस्टर्स को जो कि पिकनिक को एंजॉय कर रहे हैं. लेट मी शो यू द पिक्चर. सिमिलरली दिस पिक्चर, उसने ऐसी ड्राइंग बनाई जिसके अंदर वो जो उसके पेरेंट्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं पिकनिक को. ही ऑल्सो ड्रॉज पेपर प्लेट्स एंड एम्प्टी टिन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स लेफ्ट ऑन द ग्राउंड. उसके बाद उसने क्या ड्रॉ किया, कुछ पेपर प्लेट्स को ड्रॉ किया जो डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं, एंड एम्प्टी टिन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स. सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं ना, उनके जो एम्प्टी बॉटल्स होती हैं उन्हें एम्प्टी टिन्स कहते हैं, उनको उसने ड्रॉ किया ग्राउंड पर. ही डज दिस बिकॉज दिस इज़ वट ऑलवेज हैपन्स ऑन देयर पिकनिक्स. ऐसा उसने इसलिए ड्रॉ किया बिकॉज ये वही चीज़ें थी जो कॉन्टीन्यूसली उसकी पिकनिक पे होती थी. मतलब ऑलवेज़, हमेशा उसकी जब भी वो पिकनिक पे जाते थे उनके पिकनिक पे इस तरह से ग्राउंड पे जो ये टिन्स होते हैं और पेपर प्लेट्स होती हैं वो थ्रो की हुई होती थी. बट व्हेन दीज बिट्स ऑफ लिटर कम टू लाइफ समथिंग ऑफुल हैपन्स. लेकिन जब मैजिक ब्लैक बोर्ड ने इन चीज़ों को रियलिटी में उसके सामने ले आए, जब ग्राउंड पे रख दिया इन चीज़ों को, तो क्या हुआ, बहुत ही ऑफुल थिंग हुई. सबसे लाइक वर्स्ट थिंग हुई. वो क्या थी, अराउंड एवरी पेपर प्लेट एंड एवरी एम्प्टी टिन द फॉरेस्ट टर्न्स ग्रे. अराउंड में पेपर प्लेट मतलब आसपास पेपर प्लेट और एम्प्टी टिन्स की वजह से जो फॉरेस्ट है वो ग्रे हो गया था. एंड दिस ग्रेनेस स्टार्ट स्प्रेडिंग एवरीवेयर. और जो ये ग्रेनेस है सारी जगह स्प्रेड होने लग गई थी, फैलने लग गई थी. टू द ग्रास, टू द फ्लावर्स, टू द एनिमल्स. ग्रास के ऊपर भी सारा ग्रे हो गया था, फ्लावर्स भी ग्रे हो गए थे, जो एनिमल्स थे वो भी फेड हो गए थे. देन द बॉय रियलाइजेज दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द लिटर दैट द फॉरेस्ट हैज़ बिकम ग्रे. तो जो बॉय है उसे ये रियलाइज़ हुआ कि जो ये ग्रेनेस है ये सारी लिटर की वजह से है. लिटर क्या होता है, जो वेस्ट थ्रो करते हैं ना हम ग्राउंड पे, उसे लिटर कहते हैं. तो ये सारे लिटर की वजह से. सो ही रन्स थ्रू द फॉरेस्ट विद द ब्लैक बोर्ड इरेजर इन हिज हैंड टू इरेज इट. तो वो फॉरेस्ट में जल्दी से रन करता है और जो ब्लैक बोर्ड का इरेज़र होता है उसके हैंड में ही था,
डस्टर को ब्लैक बोर्ड इरेजर कहते हैं, तो उसने उसे यूज़ किया जिससे कि वो ये जो लिटर है उसे इरेज कर सके। ही इज़ क्विक एंड डज नॉट लीव अ सिंगल पीस ऑफ लिटर। वो इतने जल्दी में उसने इरेज किया, उसने एक सिंगल पीस भी नहीं छोड़ा लिटर का, एक सिंगल वेस्ट भी नहीं छोड़ा वहाँ पर। द फॉरेस्ट बिकम्स ग्रीन अगेन, जो फॉरेस्ट है वो अगेन ग्रीन हो गया। द एनिमल्स ऑल्सो लुक हैप्पी, एनिमल्स जो थे वो अब फिर से हैप्पी दिख रहे थे। द बॉय एंड द एनिमल्स प्ले टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, जो बॉय है और वहाँ पे जो एनिमल्स थे रेस्ट ऑफ द डे उन्होंने, मतलब जो दिन बच गया था तब उन्होंने वो खेले वहाँ पर एक साथ। द बॉय नेवर सीज दैट ब्लैक बर्ड अगेन, बॉय ने वो ब्लैक बर्ड को उसके बाद कभी नहीं देखा, बिकॉज दैट वॉज द मैजिक ब्लैक बर्ड। बट नाउ एवरी टाइम ही गोज़ फॉर अ पिकनिक विद हिज फैमिली ही रिमेंबर्स वट हैपन्ड देयर। अब जब भी वो पिकनिक पे जाता है तब उसे याद आ जाता है कि क्या हुआ था जब वहाँ पर बहुत सारे वेस्ट थे, तो क्या हुआ था, सारा जो फॉरेस्ट है वो ग्रे हो गया था। तो अब उसे क्या याद रहता है कि अब उसने कहीं पे भी वेस्ट को थ्रो नहीं करना है। एंड इज़ द फर्स्ट टू पिक अप एनी लिटर, और हमेशा सबसे आगे रहता था कि कोई भी वेस्ट अगर है तो वो उसे उठा के हमेशा डस्टबिन में थ्रो करे। He is also sure to remind others that anything they leave lying in the forest is very bad for the forest and the animals. अब उसने क्या किया, वो हमेशा सबको भी रिमाइंड करवाता था, सबको याद करवाता था कि अगर हम फॉरेस्ट में इस तरह से थ्रो करते रहेंगे या कहीं पे भी लाइक गार्डन में भी थ्रो करेंगे तो क्या होगा, फॉरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है ये, ना एनिमल्स के लिए अच्छा है, तो उनकी जो लाइफ है वो स्पॉइल हो जाएगी। So the moral of the story is never litter around, कभी भी अपने आसपास कोई भी वेस्ट थ्रो नहीं करना है। ऑलवेज़ हमें जो लिटर है वो किस में, पैकेट्स में, ये जो पॉली बैग्स होते हैं जिसके अंदर हम वेस्ट को थ्रो करते हैं उनमें थ्रो करना है। एंड जिस वजह से जो फॉरेस्ट है वो एकदम ग्रीन रहेगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा, फॉरेस्ट ग्रे नहीं होगा कभी भी। So students, that was the chapter, and if you have any doubt you can contact me through call or WhatsApp. At last I am sending you the notes also and worksheet to do. I hope you all get this chapter. Thank you and have a nice day.